بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، میں محمد عارف لطیف دوستوں میں لے کر حاضر ہوا ہوں یو جی سی نیٹ جے آر ایف کے کچھ اہم معروضی سوالات و جوابات۔ تو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، صنف کے اعتبار سے ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ بہت ہی اچھا سوال ہے، سبھی لوگ اس کے آنسر دینے کی کوشش کریں گے۔ جی دوستو، تو سوال نمبر 26 کا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا، یعنی کہ اے اور سی۔ آخری تحفہ، واردات اور زادہ راہ یہ منشی پریم چند کے افسانوی مجموعے ہیں۔ پتجھڑ کی آواز، روشنی کی رفتار اور شیشے کا گھر، یہ پتجھڑ کی آواز، روشنی کی رفتار اور شیشے کا قرۃ العین حیدر کے افسانوی مجموعے ہیں۔ اس کے علاوہ بات کریں، یہ بی میں جو دیا گیا ہے ہم وحشی ہیں، تو ہم وحشی ہیں کرشن چندر کا داخل نصاب افسانوی مجموعہ ہے۔ یاد رکھیے گا، کرشن چندر کا افسانوی مجموعہ ہم وحشی ہیں میں جو ہے ٹوٹل 10 افسانے شامل ہیں، اور ہم وحشی ہیں جو ہے 1948 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہاں دیا گیا ہے 3 غنڈے۔ 3 غنڈے جو ہے یہ بھی کرشن چندر کا افسانوی مجموعہ ہے، لیکن شکست جو ہے یہ کرشن چندر کا ناول ہے، تو ضرور یاد رکھیں۔ تو اس اعتبار سے یہاں بھی غلط ہو جائے گا۔ ہم وحشی ہیں 3 غنڈے افسانوی مجموعہ اور شکست ناول ہے، تو اس اعتبار سے یہاں غلط ہو جائے گا، لیکن تینوں تصانیف جو ہے کرشن چندر کے ہیں۔ صنف کے اعتبار سے پوچھا گیا ہے، تو اس اعتبار سے یہاں بھی غلط ہوگا۔ چلیے اب یہاں دیکھتے ہیں ڈی میں، ٹیڑھی لکیر، ضدی اور چوتھی کا جوڑا۔ تو ٹیڑھی لکیر جو ہے اور ضدی، ٹیڑھی لکیر اور ضدی جو ہے اس میں چغتائی کے ناول ہیں، لیکن چوتھی کا جوڑا جو ہے یہ اس میں چغتائی کا افسانوی مجموعہ ہے، یعنی کہ افسانہ ہے۔ جی، تو ٹیڑھی لکیر اور ضدی یہ جو ہے ناول کے زمرے میں آتے ہیں، اس میں چغتائی کے، اور چوتھی کا جوڑا جو ہے یہ افسانوی مجموعہ ہے، تو اس اعتبار سے یہاں سیم کے اعتبار سے پوچھا گیا ہے، تو ڈی بھی غلط ہو جائے گا۔ اے اور سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ چلیے جی اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 27 کی طرف۔ شاعر اور ان کی نظم کے اعتبار سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ نظیر اکبر آبادی، شعر کی طرف خطاب، خواجہ الطاف حسین حالی، شہر عاشق، پنڈت برج نارائن چکبست، خاک ہند، یا پھر علامہ اقبال، لالہ صحرائی۔ جی، تو سوال نمبر 27 کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، یعنی کہ سی اور ڈی۔ برج نارائن چکبست کا خاک ہند اور علامہ اقبال کا نظم لالہ صحرائی۔ بات کریں برج نارائن چکبست کی، تو پنڈت برج نارائن چکبست کی پیدائش جو ہے، برج نارائن چکبست کی پیدائش 1882 عیسوی کو فیض آباد میں ہوئی ہے، اور وفات 1926 عیسوی کو رائے بریلی اسٹیشن پر فالج کے حملے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ علامہ اقبال کی پیدائش 1877 عیسوی کو سیال کوٹ میں ہوئی ہے، اور وفات 1938 عیسوی کو لاہور میں ہوئی ہے۔ اب بات کریں نظیر اکبر آبادی اور خواجہ الطاف حسین حالی کی، تو نظیر اکبر آبادی کی پیدائش 1740 عیسوی کو ہوئی ہے۔ یاد رکھیے دوستو، 1740 عیسوی کی نظیر اکبر آبادی کی پیدائش ہوئی ہے، اور دہلی میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور وفات 1830 عیسوی کو ہوئی ہے۔ خواجہ الطاف حسین حالی کی پیدائش 1837 عیسوی کو پانی پت میں، اور وفات 1914 عیسوی کو پانی پت ہی میں ہوئی ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 28 کی طرف۔ تذکرہ ریختہ گویاں ان میں سے کس کی تالیف ہے؟ اعظم الدولہ سرور، لکشمی نارائن شفیق، فتح علی گردیزی، یا پھر قیام الدین قائم چاند پوری۔ جی، تو تذکرہ ریختہ گویاں کے مصنف ہیں فتح علی گردیزی۔ تذکرہ ریختہ گویاں یہ تذکرہ جو ہے فتح علی گردیزی صاحب کا ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 29 کی طرف۔ ایمرجنسی کے پس منظر میں ان میں سے کون سا ڈرامہ لکھا گیا؟ اندھیرا اجالا، مٹی کا بلاوا، انارکلی، یا پھر ضحاک۔ جی، تو محمد حسن کا یہ ڈرامہ ہے، اور یہ ایمرجنسی کے پس منظر میں لکھا گیا ہے ڈرامہ ضحاک۔ یاد رکھیے گا، ڈرامہ ضحاک جو ہے 1900 کتابی شکل میں 1980 میں شائع ہوئی ہے ڈرامہ ضحاک، ضرور یاد رکھیے گا۔ بات کریں محمد حسن کی، تو محمد حسن صاحب کی پیدائش جو ہے، محمد حسن کی پیدائش جو ہے
1926 ईस्वी को ये है, याद रखिएगा 1926 ईस्वी को मुरादाबाद में ये, और वफ़ात 2010 ईस्वी को लाहौर में लाहौर बोल में दिल्ली में हुई है। चलिए जी अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 30 की तरफ। सिन्फ के एतबार से 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, 2 सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। सिन्फ के एतबार से पूछा गया है, तो सिन्फ के एतबार से जो है तीसरा इसका एक सेकंड, ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा, हाँ ये रहा। तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और सी, मेला घूमनी, हतक, जिला वतन, बिच्छू, फूफी, और उसके अलावा जो है मेला घूमनी, हतक और जिला वतन, बिच्छू फूफी। मेला घूमनी जो है अली अब्बास हुसैनी का अफसानी मजमुआ है। हतक के बारे में बात करें तो इसाद हसन मंटो का अफसाना है, और बिच्छू फूफी जो है, बिच्छू फूफी ये इस्मत का अफसाना है। तो ये अफसाने हैं, ये वाले जो ज़ुमरे हैं ये अफसाने के ज़ुमरे में आ रहे हैं। और सी वाला जो ज़ुमरा है फायर एरिया, बस्ती, उदास नस्ल, गोदान, ये नावल के ज़ुमरे में आते हैं। फायर एरिया जो है इलियास अहमद गद्दी का नावल है, ज़रूर याद रखिएगा। बस्ती इंतज़ार हुसैन का, और उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का, गोदान मुंशी प्रेमचंद का। बात करें फायर एरिया के मुसन्निफ़, तो फायर एरिया के मुसन्निफ़ इलियास अहमद गद्दी के बारे में, तो इलियास अहमद गद्दी साहब की पैदाइश जो है 1934 ईस्वी को हुई है झरिया ज़िला धनबाद में, और वफ़ात जो है इनकी 1997 ईस्वी को झरिया ज़िला धनबाद ही में हुई है। इनका नावल फायर एरिया जो है 1994 ईस्वी में शाया हुआ है, ज़रूर याद रखिएगा 1994 ईस्वी में नावल फायर एरिया शाया हुआ है। और नावल फायर एरिया में जो है टोटल 3 अबवाब हैं, ज़रूर याद रखिएगा। बस्ती के मुसन्निफ़ के बारे में बात करें, नावल बस्ती, तो बस्ती जो है इंतज़ार हुसैन का है। इंतज़ार हुसैन की पैदाइश 1923 ईस्वी को हुई है, दिसंबर 1923 ईस्वी को बुलंद शहर में, और वफ़ात जो है 2016 ईस्वी को जो है लाहौर में हुई है। बस्ती इनका नावल है इंतज़ार हुसैन साहब का, और नावल बस्ती जो है 1980 ईस्वी में शाया हुई है। नावल बस्ती 11 अबवाब पर मुश्तमिल है। बात करें उदास नस्लें के बारे में, तो उदास नस्लें जो है ये अब्दुल्ला हुसैन का नावल है। अब्दुल्ला हुसैन की पैदाइश 1931 ईस्वी को हुई है रावलपिंडी में पाकिस्तान में, और वफ़ात 2015 ईस्वी को जो है लाहौर में हुई है। इनका नावल उदास नस्लें जो है वो 1963 ईस्वी में जो है मंजर आम पर आया है, और नावल उदास नस्लें जो है 4 अबवाब पर मुश्तमिल है। गोदान मुंशी प्रेमचंद का नावल ये 1936 ईस्वी में शाया हुआ हिंदी में, और 1937 ईस्वी में जामिया से उर्दू में शाया हुआ है। मुंशी प्रेमचंद का ये नावल है। और इसके अलावा जो है यहाँ डी में जो दिया गया सिर्फ़ एक सिगरेट, और पान शॉप, और बड़े घर की बेटी, तो ये जो है बड़े घर की बेटी मेरे ख़्याल से मुंशी प्रेमचंद का है। बड़े घर की बेटी मुंशी प्रेमचंद का है, लेकिन सिर्फ एक सिगरेट और पान शॉप जो है, पान शॉप, ये दोनों जो हैं राजेंद्र सिंह बेदी के हैं। और टेढ़ी लकीर जो है ये इस्मत चुगताई का नावल है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 31 की तरफ। रानी केत की कहानी किस ज़बान में लिखने का दावा किया गया है? दक्कनी, उर्दू, हिंदी या फिर फ़ारसी? जी साथियों, रानी केत की कहानी जो है ये हिंदी ज़बान में लिखने का दावा किया गया है। रानी केत की किनका है? तो इंशाउल्लाह खान इंशा की ये दास्तान है, ज़रूर याद रखिएगा। दाखिली निज़ाम नेट के निज़ाम में शामिल है रानी केत की कहानी। और इंशाउल्लाह खान इंशा ने हुसैन अली ख़ान की फरमाइश पर लिखा था 1803 ईस्वी में, ज़रूर याद रखिएगा। और रानी केत की कहानी को मौलवी अब्दुल हक़ ने जो है 1933 ईस्वी में किताबी शक्ल में शाया किया था। इस किताब के
हवाले से इंशाअल्लाह खान इंशा का एक मशहूर कौल है, ये वो कहानी है जिसमें हिंदी छुट किसी और बोली का मेल है ना पुट। जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। यानी कैद की कहानी ये जो है हिंदी ज़बान में लिखने का दावा किया गया है इसमें जो है, और जो है इसके मुसन्निफ़ इंशाअल्लाह खान इंशा की पैदाइश 1752 ईस्वी में हुई है। 1752 ईस्वी में मुर्शिदाबाद में हुई है और वफ़ात 1817 ईस्वी को हुई है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 32 की तरफ। इनमें से किसकी शायरी रोमान और इनकलाब का हसीन संगम है? फैज़, अख्तर अली ईमान, मुनइम राशिद या फिर मीरा जी? जी साथियों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फैज़ अहमद फैज़। जो है फैज़ अहमद फैज़ की शायरी जो है रोमान और इनकलाब का हसीन संगम है। बात करें फैज़ अहमद फैज़ की तो इनकी पैदाइश 1911 ईस्वी को सियालकोट में हुई है और वफ़ात 1984 ईस्वी को लाहौर में हुई है। फैज़ अहमद फैज़ का शेरी मजमूए अक्सर पूछे जाते हैं। नक्शे फरियादी बहुत ही मशहूर है। नक्शे फरियादी कब मंजर आम पर आया दोस्तों? तो याद रखेंगे 1941 ईस्वी में मंजर आम पर आया है। इनके साथ शेरी मजमूए हैं। पहला है नक्शे फरियादी, दूसरा दस्ते साबा, तीसरा जिंदा नामा, चौथा दस्त तहे संग, पाँचवा सरवादिये सेना, छठा शाम शहरियारा और सातवां इनका आखिरी शेरी मजमूआ मेरे दिल मेरे मुसाफिर। फैज़ अहमद फैज़ का एक खुद नविश्त है जिसका नाम है महवे विसाल आशनाई। महवे विसाल आशनाई जो है, महवे विसाल जो है आशनाई, इनका जो है क्या है तो खुद नविश्त है। ज़रूर याद रखिएगा। और ये खुद नविश्त 1980 ईस्वी में मंजर आम पर आया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। कौन सी तसनीफ़ मुसन्निफ़ की ज़िंदगी में ही अंग्रेज़ी में तर्जमा हो गई थी? जी तो वो तसनीफ़ बाग़ बहार है। बाग़ बहार जो है ये मीर अमन की ज़िंदगी में जो है इस किताब का अंग्रेज़ी में तर्जुमा हो चुका था। बात करें मीर अमन की तो मीर अमन की पैदाइश 1732 ईस्वी को हुई है दिल्ली में और वफ़ात 1808 ईस्वी को लखनऊ में हुई है। मीर अमन ने टोटल 2 किताबें तहरीर की हैं। पहला है बाग़ बहार और दूसरा इनका जो है इनका गंज खूबी है। ज़रूर याद रखिएगा, गंज खूबी जो है अक्सर पूछा जाता है। गंज खूबी जो है इनका दूसरा किताब है। बाग़ बहार के तकमील 1802 ईस्वी में हुई है और इसकी सने इशाअत जो है 1840 के ठीक 2 साल बाद शाये हुई है। बाग़ बहार 1804 ईस्वी में। बाग़ बहार मीर अमन की ये तबाज़ाद नहीं है, याद रखिएगा। बाग़ बहार जो है ये एक तबाज़ाद दास्तान नहीं है बल्कि ये किससे माखूज़ है तो 9 तर्ज़ मुरस्सा से माखूज़ है। 9 तर्ज़ मुरस्सा से माखूज़ है बाग़ बहार। और 9 तर्ज़ मुरस्सा के मुसन्निफ़ कौन हैं तो मीर मोहम्मद हुसैन अता ख़ान तहसीन। अता ख़ान तहसीन का ये किताब है 9 तर्ज़ मुरस्सा और इसी किताब से ये माखूज़ है। और 9 तर्ज़ मुरस्सा जो है ये फ़ारसी क़िस्से चहार दरवेश का आज़ाद तर्जमा है। बाग़ बहार में दिल्ली की माशरत पेश की गई है, ये भी याद रखिएगा। पूछा जाता है लखनऊ तो ऑप्शन में रहता है कभी कभी लखनऊ, तो ज़रूर याद रखिएगा दिल्ली यहाँ हमारा सही जवाब होगा। बाग़ बहार में जो है दिल्ली की माशरत पेश की गई है। बाग़ बहार के ताल्लुक़ से एक मशहूर कौल है, आपने बताना है ये कौल किनका है कि बाग़ बहार उर्दू नस्र की पहली ज़िंदा किताब करार पाई। एक इस नक़ाद ने कहा है कि बाग़ बहार जो है बाग़ बहार उर्दू नस्र की पहली ज़िंदा किताब करार पाई। जी तो ये कौल जो है सैयद अब्दुल्ला का कौल है। साइंटिफिक नक़ाद से ताल्लुक़ रखते हैं सैयद अब्दुल्ला, इन्हीं का ये कौल है बाग़ बहार उर्दू नस्र की पहली ज़िंदा किताब करार पाई। एक और मशहूर नक़ाद का कौल है बाग़ बहार के ताल्लुक़ से, आपने बताना है वो किनका है। कौल ये है दोस्तों कि मीर अमन की बाग़ बहार उन तसनीफ़ात में से है जो एक बार पैदा होकर फिर नहीं मरते। बहुत ही मशहूर कौल है, ज़रूर बताइएगा कि कौल ये है मीर अमन की बाग़ बहार उन तसनीफ़ात में से है जो एक बार पैदा होकर फिर नहीं मरते। जी साथियों, तो ये जो है सैयद एहतशाम हुसैन का कौल है। 1912 से 1972 वाले का ये कौल है, ज़रूर याद रखिएगा। एहतशाम हुसैन का कौल ये बहुत मशहूर है, मीर अमन की बाग़ बहार उन तसनीफ़ात में से है जो एक बार पैदा होकर फिर नहीं मरते। अब बढ़ जाते हैं दोस्तों सवाल नंबर 34 की तरफ। आप बीती की तर्ज में लिखा हुआ इनमें से कौन सा नावल है? आग का दरिया, टेढ़ी लकीर, फिरदौसे बरी या फिर उमराऊ जान अदा? जी तो सवाल नंबर 34 का सही जवाब हो जाएगा हमारा
उमराव जानादा आप बीती के तर्ज में लिखा गया। ये उमराव जानादा मिर्ज़ा हादी रसवा का एक शहकार नावल है जो 1899 ईस्वी में मंजर आम पर आया है। उमराव जानादा एक तरह से नफ्सियाती नावल है। उमराव जानादा 25 हिस्सों पर मुश्तमिल ये नावल है। इस नावल में फ्लैश बैक की तकनीक इस्तेमाल की गई है। पूछा जाता है इनमें से किस नावल में फ्लैश बैक की तकनीक इस्तेमाल की गई है। ऑप्शन में रहेगा उमराव जानादा, लगा दीजिएगा। उमराव जानादा में फ्लैश बैक की तकनीक इस्तेमाल की गई है। मिर्ज़ा हादी रसवा की पैदाइश के बारे में बात करें तो हादी रसवा की पैदाइश 1858 ईस्वी को हुई है दोस्तों लखनऊ में, और वफ़ात 1931 ईस्वी को हैदराबाद में हुई है। मिर्ज़ा हादी रसवा का शुमार नफ्सियाती नक़ादों में भी किया जाता है, ज़रूर याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 35 की तरफ। अंग्रेज़ी की शेरी रिवायत का पुरतू किसकी गज़ल में नज़र आता है। आज़ाद लखनवी, बहज़ाद लखनवी, फ़िराक गोरखपुरी या फिर फ़ानी बिदायूनी। जी तो सवाल नंबर 35 का सही जवाब हो जाएगा फ़िराक गोरखपुरी। अंग्रेज़ी की शेरी रिवायत का पुरतू फ़िराक गोरखपुरी की गज़लों में नज़र आता है। फ़िराक गोरखपुरी की पैदाइश 1896 ईस्वी को गोरखपुर में हुई है और वफ़ात 1982 ईस्वी को हरकत क़ल्ब रुकने की वजह से दिल्ली में हुई है। फ़िराक गोरखपुरी की शायरी की खुसूसियत जो है रोमानी नीम ख्वाबी की कैफियत है, जरूर याद रखिएगा। रोमानी नीम ख्वाबी की कैफियत है इनकी शायरी की खुसूसियत। फ़िराक गोरखपुरी जो है वो उर्दू के तासुराती नक्काद तस्लीम किए जाते हैं। उर्दू के ये तासुराती नक्काद माने जाते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। और इनका जो है गुले नगमा जो है, गुले नगमा, इनका जो शेरी मजमुआ है गुले नगमा, गुले नगमा जो इनका शेरी मजमुआ है दोस्तों, उस पर जो है ज्ञानपीठ का अवार्ड मिला है। 1969 ईस्वी में जो है ज्ञानपीठ का अवार्ड मिला है इन्हें। और इसके अलावा जो है तोहफ़ाए खुशतर इनका शेरी मजमुआ, पहला शेरी मजमुआ है जो 1922 ईस्वी में मंजर आम पर आया है, ज़रूर याद रखिएगा। तोहफ़ाए खुशतर फ़िराक गोरखपुरी का पहला शेरी मजमुआ है। उसके अलावा शोलाए साज, रूह कायनात, मशाले जहाँ और रूप, रूप जो है रुबाइयों का मजमुआ है। रूप जो है रुबाइयों का मजमुआ है। पूछा जाता है कि रूप जो है किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखती है, तो आपने बताना है कि रूप जो है वो रुबाइयों से ताल्लुक़ रखती है, यानी रूप जो है रुबाइयों का मजमुआ है। 1946 ईस्वी में मंजर आम पर आया है, ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 36 की तरफ। सवाल नंबर 36 है, इनमें से किसकी नज़्में अमली ज़िंदगी में हमारी रहनुमाई करती हैं। जी तो सवाल नंबर 36 का सही जवाब होगा मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। हाली की नज़में जो है वो अमली ज़िंदगी में हमारी रहनुमाई करती हैं। बात करें मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की तो पैदाइश 1837 ईस्वी को पानीपत में और वफ़ात 1914 ईस्वी को पानीपत ही में हुई है। मीरा जी के बारे में बात करें दोस्तों तो मीरा जी की पैदाइश जो है 1912 ईस्वी को पंजाब में हुई है और वफ़ात 1949 ईस्वी को मुंबई में हुई है। चलिए जब बढ़ते हैं सवाल नंबर 37 की तरफ। हाल ही के हवाले से यहाँ कुछ अहम नुकात हैं जो आपके इम्तहान के लिए बहुत ही कारामद साबित होंगे। जी तो अल्ताफ़ हुसैन हाली को उर्दू का बर्नौड शाह कहा जाता है, ज़रूर याद रखिएगा। और कर्नल हलराइट की सिफारिश पर इन्हें 1904 ईस्वी में हिंदुस्तान के वाइस राय नॉर्थ ब्रॉक ने शमसुल उलमा के ख़िताब से नवाजा था। नेचुरल शायरी का नज़रिया इन्होंने पेश किया था। यादगार गालिब 1897 ईस्वी में मंजर आम पर आया है जो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। मुक़द्दस मद्दू जज़्र इस्लाम अक्सर पूछा जाता है 1879 ईस्वी में मंजर आम पर आया। हयात जावेद 1901 ईस्वी में मंजर आम पर आया। ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। और मुक़द्दमा शेर व शायरी मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है, अक्सर पूछा जाता है 1893 ईस्वी में मंजर आम पर आया। जी सवाल नंबर 37 देखिएगा। 38 एक सेकंड, ये तो सवाल हो चुका है ना। जी सवाल 37 नंबर ये है कि किसकी नज़में अमूमन पैगाम से ममलू होती हैं। ये तो इस सवाल का सही जवाब होगा अल्लामा इक़बाल। अल्लामा इक़बाल की नज़में जो हैं पैगाम से ममलू होती हैं। अल्लामा इक़बाल की पैदाइश वफ़ात के बारे में ज़िक्र हो चुका है ऊपर, तो इनके हवाले से कुछ और अहम नुकात को जो है देख लेते हैं। प्रोफेसर आर्नल्ड की याद में जो अल्लामा इक़बाल ने नज़्म नालाए फ़िराक तहरीर किया था, ज़रूर याद रखिएगा। नालाए फ़िराक जो है प्रोफेसर आर्नल्ड की याद में इन्होंने लिखा था। और
हिमाला जो है अल्लामा इकबाल की पहले मतबूआ नज़्म है जो मखज़न लाहौर के शुमारे में जो है कोहिस्तान हिमाला के नाम से शाया हुआ है, कोहिस्तान हिमाला के नाम से। और जो है बांगे दरा का दिबाचा अब्दुल क़ादिर ने तहरीर किया है, इसे भी याद रखिएगा। और हिंदू पाक में इकबाल की 100 साला तकरीबात 1977 ईस्वी में मुनअक़िद हुई थी। और इसके अलावा जो है अल्लामा इकबाल जो है मियाँ निज़ामुद्दीन ने इकबाल को शमसुल उलमा का ख़िताब 1901 ईस्वी में जो है दिया था, ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों। मियाँ निज़ामुद्दीन ने इकबाल को मलिक शुअरा का शमसुल उलमा नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मलिक शुअरा का ख़िताब 1901 ईस्वी में दिया था मियाँ निज़ामुद्दीन ने। अल्लामा इकबाल के 4 शेरी मजमूए हैं, मालूम होगा आप लोगों को। चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 38 की तरफ। मगरबी तर्ज़ हयात को तंज़ो तज़हीक का हदफ बनाने वाला शायर इनमें से कौन है? जी, तो मगरबी तर्ज़ हयात को तंज़ो तज़हीक का हदफ बनाने वाला मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी हैं। अकबर इलाहाबादी के बारे में बात करें तो इनकी पैदाइश 1846 ईस्वी को इलाहाबाद में हुई है और वफ़ात 1921 ईस्वी को इलाहाबादी में हुई है। दाग और हीरा अकबर इलाहाबादी का तनक़ीदी मज़मून है, ज़रूर याद रखिएगा। दाग और हीरा जो है ये अकबर इलाहाबादी का तनक़ीदी मज़मून है। इनके शामिल नसाब नज़्में जो हैं फ़र्ज़ी लतीफ़ा, बरक़ कलीसा और जलवे दरबार दिल्ली है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 39 की तरफ। मजमुआ नग़्ज़ इनमें से क्या है और किसका है मजमुआ नग़्ज़? जी दोस्तों, तो मजमुआ नग़्ज़ जो है ये तज़करा है। मजमुआ नग़्ज़ जो है क्या है तो तज़करा है। और ये किन का तज़करा है तो क़ुदरतुल्लाह क़ासिम का ये तज़करा है मजमुआ नग़्ज़। कुछ तज़करे हैं जिनसे अक्सर सवालात बनते हैं, जिन्हें आप यहाँ देख लेंगे तो आपका यहाँ से एक सवाल हल हो जाएगा। जी, तो पहला है निकातुश्शोरा, ये फ़ारसी ज़बान में लिखा हुआ पहला तज़करा है मीर तक़ी मीर का। और निकातुश्शोरा को मौलवी अब्दुल हक़ ने मुरत्तब किया है, ज़रूर याद रखिएगा। 1751-52 में लिखा गया है ये तज़करा। इसके अलावा जो है गुलशन गुफ्तार, ये पहला दक्कनी तज़करा है ख्वाजा हमीद ख़ान हमीद औरंगाबादी का। और इसके अलावा तोहफ़तुश्शोरा अफ़ज़ल बेग काकशाल का तज़करा। मख़ज़न नुक़ात, ज़रूर याद रखिए क़यामुद्दीन क़ाइम चाँदपुरी का तज़करा। और इस तज़करा को भी जो है मौलवी अब्दुल हक़ ने मुरत्तब किया। रेख्ता गोयान फ़तह अली गुरदेज़ी का तज़करा मौलवी अब्दुल हक़ ने मुरत्तब किया। चमनिस्तान शोरा लक्ष्मी नारायण शफ़ीक़ का है, अक्सर पूछा जाता है और मौलवी अब्दुल हक़ ने इसे मुरत्तब किया है। तबक़ातुश्शोरा क़ुदरतुल्लाह शौक़ का तज़करा है। तज़करा शोराए उर्दू मीर हसन देहलवी का है। इसके अलावा जो है गुले अजायब असद अली ख़ान तमन्ना का तज़करा है, मौलवी अब्दुल हक़ ने मुरत्तब किया। तज़करा हिंदी ग़ुलाम हमदानी मुसैफ़ी का तज़करा मौलवी अब्दुल हक़ ने मुरत्तब किया। रियाज़ुल फ़सा, ये भी ग़ुलाम हमदानी मुसैफ़ी का तज़करा है और इसे भी जो है मौलवी अब्दुल हक़ ने मुरत्तब किया है। उख्त सुरैया, ये तज़करा भी जो है ग़ुलाम हमदानी मुसैफ़ी का तज़करा है और इस तज़करा को भी जो है मौलवी अब्दुल हक़ ने मुरत्तब किया है। गुलशन हिंद, ये मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का तज़करा है, ये उर्दू ज़बान में लिखा हुआ पहला तज़करा। फ़ारसी ज़बान में लिखा हुआ कौन सा तज़करा था तो निकातुश्शोरा था। और उर्दू ज़बान में लिखा हुआ पहला तज़करा गुलशन हिंद जो मिर्ज़ा अली लुत्फ़ ने तहरीर किया है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 40 की तरफ। शोराए उर्दू के तज़करे इनमें से किसकी तसनीफ़ है? शोराए उर्दू के तज़करे, जी दोस्तों, तो शोराए उर्दू के तज़करे जो है ये हनीफ़ नक़वी साहब का किताब है, ज़रूर याद रखिएगा। शोराए उर्दू के तज़करे जो है हनीफ़ नक़वी साहब की तसनीफ़ है। हनीफ़ नक़वी साहब की पैदाइश 1936 ईस्वी को हुई है और वफ़ात 2021 ईस्वी को हुई है। हनीफ़ नक़वी साहब की कुछ अहम तसानीफ़ हैं जिनसे कभी कभी सवालात बन जाते हैं कभी कभी। जी, तो किताब ये है गालिब और जहान गालिब। गालिब अहवाल आसार गालिब पर है चूँकि, तो ज़रूरी आप इसे एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है कि यहाँ से सवालात बन जाएँ। जी, इसके अलावा जो है गालिब के फ़ारसी ख़ुतूत, तलाश व तारुफ़, गालिब के चंद फ़ारसी तसानीफ़, मिर्ज़ा गालिब पंजआंग। सवाल नंबर 41 देखिएगा। दिल्ली और दिल का मरसिया किसकी शायरी को कहा गया है? मुसैफ़ी, मीर दर्द या फिर सौदा? जी, दिल्ली और दिल का मरसिया जो है दोस्तों, दिल्ली और दिल का मरसिया वो मीर तक़ी मीर के शायरी को कहा गया है। हमारा आंसर हो जाएगा बी। बात करें मीर तक़ी मीर साहब की, तो मीर तक़ी मीर की पैदाइश दोस्तों 1722 ईस्वी को ये है। 1722
22 ईस्वी को ये मीर तकी मीर की पैदाइश आगरा में और वफ़ात 1810 ईस्वी को जो है लखनऊ में हुई है। इसके अलावा जो है सौदा के बारे में बात करें तो सौदा की पैदाइश 1712 ईस्वी को हुई है, 1712 ईस्वी को, और वफ़ात 1781 ईस्वी को हुई है। जी चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 42 की तरफ। मीर तकी मीर के हवाले से कुछ अहम नुकात है, ज़रूर देख लीजिए यहाँ पे। असल नाम इनका मोहम्मद तकी आसिफुद्दौला की दावत पर 1781 से में लखनऊ गए थे। मीर की हिजिया मसनवी अज़हरनामा है। ज़िक्र मीर 1777 क्या होगा, ज़िक्र मीर 1772 होना चाहिए था, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 1772। फ़ारसी में ये मीर की खुद नविश्त है और इसका उर्दू तर्जमा जो है निसार अहमद फ़ारूक़ी ने किया है, ज़रूर याद रखिएगा। जी सवाल नंबर 42 देखिएगा। तुम आए हो ना शब इंतज़ार गुज़री है, इनमें सही मिसरे से शेर मुकम्मल कीजिए। जी दोस्तों सवाल नंबर 42 का सही जवाब होगा हमारा तलाश में है सहर बार बार गुज़री है। तुम आए हो ना शब इंतज़ार गुज़री है, तलाश में है सहर बार बार गुज़री है। यह शेर जो है फैज़ अहमद फैज़ के शेरी मजमुआ दस्त तहे संग में शामिल है। दस्त तहे संग 1952 ईस्वी में मंजर आम पर आया है। दस्ते सबा को फैज़ अहमद फैज़ ने अपनी बीवी कुलसुम के नाम मंसूब किया है, ज़रूर याद रखिएगा। दस्ते सबा को जो है फैज़ अहमद फैज़ साहब ने अपनी बीवी कुलसुम के नाम मंसूब किया है। फैज़ अहमद फैज़ के 7 शेरी मजमुए हैं। पहला है नक्शे फरियादी। बढ़ते हैं सवाल नंबर 43 की तरफ। खिरत का नाम जुनू पड़ गया, जुनू का खिरत जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे, यह शेर किनका है? जी साथियों तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हसरत मोहानी। बात करें हसरत मोहानी की तो हसरत मोहानी की पैदाइश 1880 ईस्वी को हुई है मोहान में, और वफ़ात 1951 ईस्वी को लखनऊ में हुई है, ज़रूर याद रखिएगा। हसरत मोहानी के शेर से जो है अक्सर सवालात बनते हैं, तो इनके दाखिले निसाब जो गज़ल हैं आप उन्हें ज़रूर पढ़ के जाइएगा, हो सकता है कहीं जो है और सवालात बन जाएँ इनसे। जी अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 44 की तरफ। ज़ैनुल मुलूक किस मसनवी का किरदार है? बहार इश्क़, फूलबंद, सहरुल बयान या फिर गुलज़ार नसीम? जी साथियों तो ज़ैनुल मुलूक जो है वो गुलज़ार नसीम का किरदार है। ज़ैनुल मुलूक याद रखिएगा गुलज़ार नसीम किरदार है। गुलज़ार नसीम दयाशंकर नसीम का जो है ये मसनवी है, और गुलज़ार नसीम को पंडित दयाशंकर नसीम ने 1839 ईस्वी में तहरीर किया है। और गुलज़ार नसीम को जो है किसने मुरतब किया था दोस्तों? तो रशीद हसन ख़ान साहब ने मुरतब किया है। रशीद हसन ख़ान साहब ने गुलज़ार नसीम को जो है मुरतब किया है। रशीद हसन ख़ान की पैदाइश 1925 ईस्वी को शाहजहाँपुर में हुई है और वफ़ात 2006 ईस्वी को हुई है। मसनवी गुलज़ार नसीम पहली बार कब शाये हुई है? तो मसनवी गुलज़ार नसीम पहली बार 1844 ईस्वी में शाये हुई है। 1839 ईस्वी में तहरीर की गई है और 1844 ईस्वी में पहली बार शाये हुई है मसनवी गुलज़ार नसीम। बात करें पंडित दयाशंकर नसीम की तो पंडित दयाशंकर नसीम की पैदाइश 1811 ईस्वी को लखनऊ में हुई है और वफ़ात 1845 ईस्वी को लखनऊ ही में हुई है। इनके उस्ताद का नाम ख्वाजा हैदर अली आतिश है, ज़रूर याद रखिएगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 45 की तरफ। इनमें से कौन सी तख्लीक राजेंद्र सिंह बेदी की नहीं है? अपने दुख मुझे दे दो, भोला, सपनों के देश में या फिर गरहन? जी साथियों तो सवाल नंबर 45 का सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 45 का सही जवाब होगा हमारा सपनों की देश में। अपने दुख मुझे दे दो राजेंद्र सिंह बेदी का ये अफ़सानी मजमुआ है। भोला ये इनका पहला अफ़साना है, इनकी कुलियात में पहला शामिल अफ़साना भोला है। और इनका राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफ़साना महारानी का तोहफ़ा है, लेकिन इनकी कुलियात में शामिल पहला अफ़साना भोला है, ज़रूर याद रखिएगा। और राजेंद्र सिंह बेदी ने ड्रामे भी लिखे हैं, तो इनके ड्रामे के नाम जो है वो एक तो बेजान चीज़ है, आप लोग नोट कर सकते हैं, बेजान चीज़, और दूसरा इनका जो है सात खेल,
7 کھیل جو ہے یعنی بے جان چیز اور 7 کھیل، یہ دونوں ان کے ڈرامے ہیں، انہوں نے ڈرامے بھی لکھے ہیں، تو ضرور یاد رکھیے. بات کریں سپنوں کے دیس میں، ایک ان کی تخلیق ہے، تو یہ جو ہے اختر ارونوی صاحب کی ہے. سپنوں کے دیس میں ضرور یاد رکھیے گا، اختر ارونوی صاحب کی تخلیق ہے. اب بات کریں جو ہے راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش اور وفات کی، تو سپٹمبر 1915 عیسوی کو ان کی پیدائش ہوئی ہے لاہور میں، اور وفات 1984 عیسوی کو ہی ہے. اور راجندر سنگھ بیدی نے محسن لاہوری کے نام سے جو ہے انہوں نے کہانیاں لکھی ہیں. یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کس نے محسن لاہوری کے نام سے کہانیاں لکھی ہیں، تو ضرور یاد رکھیے گا بیدی نے. اور بیدی کی پہلی کہانی جو ہے پنجابی زبان میں جو ہے انہوں نے دکھ سکھ لکھی تھی. چلیے جی، سوال نمبر 46 کی طرف بڑھتے ہیں. کس ناقد کا تعلق ترقی پسند تحریک سے نہیں ہے؟ جی، تو ترقی پسند تحریک سے حسن عسکری صاحب کا تعلق نہیں ہے. اس کے علاوہ احتشام حسین، مجنو گورکھپوری اور ممتاز حسین کا تعلق ہے ترقی پسند تحریک سے، لیکن حسن عسکری کا نہیں ہے. اکثر جو ہے ان سے سوالات بنتے ہیں اور زیادہ تر آپشن میں حسن عسکری صاحب کا ہی ذکر کیا جاتا ہے، تو ضرور یاد رکھیے گا. آپ کو اگر حسن عسکری دکھ گیا، سمجھ لیجیے کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، حسن عسکری پر ٹک کر دیجیے گا. ان کا تعلق جو ہے ترقی پسند تحریک سے نہیں ہے، بلکہ یہ ترقی پسند تحریک کے سخت مخالف رہے ہیں. ان کا جو ہے انسان اور آدمی ستارہ اور بادبان ان کا مشہور کتاب ہے، انسان اور آدمی ستارہ اور بادبان. چلیے جی، اب بڑھ جاتے ہیں سوال نمبر 47 کی طرف. ان میں سے کون سا بیان درست ہے؟ پہلا بیان ہے دوستو امراؤ جان ادا اردو کا پہلا ناول ہے. دوسرا ہے شمالی ہند کی پہلی مثنوی قطب مشتری ہے. سی میں ہے نکات الشعراء اردو شاعروں کا پہلا تذکرہ ہے. ڈی میں ہے کرب القطع دکن کی پہلی نثری تصنیف ہے. جی ساتھیو، تو سوال نمبر 47 کا صحیح جواب ہوگا ہمارا نکات الشعراء اردو شاعروں کا پہلا تذکرہ ہے، فارسی میں لکھا گیا ہے. اردو زبان میں پہلا تذکرہ کون سا ہے؟ ابھی ہم لوگوں نے کچھ دیر پہلے ڈسکس کیا ہے، آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیں. میں نہیں بتاؤں گا، آخر میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے. تو نکات الشعراء اردو شاعروں کا پہلا تذکرہ ہے، یہ فارسی زبان میں لکھا گیا ہے، میر تقی میر کا تذکرہ ہے. اور جو اردو زبان میں پہلا تذکرہ ہے وہ آپ کمنٹ سیکشن میں لکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں کہ کن کا تذکرہ ہے اردو زبان میں لکھا ہوا پہلا تذکرہ. یہ تو نکات الشعراء اردو شاعروں کا پہلا تذکرہ ہے، لیکن فارسی میں لکھا گیا ہے، لیکن اردو زبان میں لکھا ہوا پہلا تذکرہ بتائیے. جی چلیے، اور ایک چیز ضرور یاد رکھیے گا، نکات الشعراء کے جواب میں فتح علی گردیزی نے تذکرہ ریختہ گویاں لکھا تھا. فتح علی گردیزی کا یہ تذکرہ ہے تذکرہ ریختہ گویاں، اسی کے جواب میں جو ہے انہوں نے لکھا تھا، ضرور یاد رکھیے گا. نکات الشعراء کے جواب میں فتح علی گردیزی نے تذکرہ ریختہ گویاں لکھا تھا، جس میں 98 جو ہے شعر کا ذکر انہوں نے کیا ہے. چلیے جی، بڑھتے ہیں سوال نمبر 48 کی طرف. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. یہ شعر جو ہے اکثر پوچھا جاتا ہے. مجروح سلطان پوری کا یہ شعر ہے، ضرور یاد رکھیے گا. مجروح سلطان پوری کے بارے میں بات کریں دوستو، تو مجروح سلطان پوری کی پیدائش 1919 عیسوی کو ہوئی ہے اعظم گڑھ میں، اور وفات 2000 عیسوی کو ممبئی میں ہوئی ہے. ان کا اصل نام پوچھا جاتا ہے اسرار الحسن خان، ان کا اصل نام ہے، ضرور یاد رکھیے گا. اور مجروح سلطان پوری جو ہے یہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے. مجروح کو ترقی پسند غزل کا نقیب بھی کہا جاتا ہے. غزل کا نقیب جو ہے ترقی پسند تحریک غزل کا نقیب جو ہے مجروح سلطان پوری کو ہی کہا جاتا ہے. مجروح سلطان پوری کے داخل نصاب شعری مجموعہ غزل ہے، ضرور یاد رکھیے کہ ان کا داخل نصاب شعری مجموعہ ہے غزل. اور ان کا دوسرا شعری مجموعہ جو بہت مشہور ہے مشعل جاں، مشعل جاں ان کا دوسرا شعری مجموعہ ہے. اب بڑھ جاتے ہیں دوستو سوال نمبر 49 کی طرف. امراؤ جان ادا کا کردار ان میں سے فیض علی کیا ہے؟ غلام بھائی، ڈاکو یا پھر نواب؟ جی تو فیض علی جو ہے دوستو وہ کیا رہتا ہے، تو ڈاکو ہوتا ہے. فیض علی جو ہے وہ ڈاکو ہوتا ہے، ضرور یاد رکھیے گا. امراؤ جان ادا مرزا ہادی رسوا کا ناول ہے جو 25 حصوں پر مشتمل ہے، اور یہ شاہی ترانہ سے ماخوذ ہے. اس کے مصنف مرزا ہادی رسوا ہیں. مرزا ہادی رسوا کی پیدائش 1898 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی اور وفات 1931 عیسوی کو حیدرآباد میں. بڑھتے ہیں آج کے ہمارے آخری سوال کی طرف.
جی، منشی پریم چند کا افسانہ کفن پہلی بار کس ادبی جریدے میں شائع ہوا تھا؟ جی تو سوال نمبر 50 کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں ہمارا جامعہ۔ منشی پریم چند کا افسانہ کفن پہلی بار جو ہے وہ ادبی جریدہ جامعہ میں شائع ہوا تھا۔ منشی پریم چند کا افسانہ کفن پہلی بار جو ہے ادبی جریدہ جامعہ میں شائع ہوا تھا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں ساتھیوں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔